अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना फ़ारूक शेख और प्रोग्राम में सबसे पहले बात करते हैं बांग्लादेश में इक़्तिदार की बड़ी तब्दीली की। एक माह से जारी पुरतशद्दुद मुज़ाहिरों के बाद वज़ीर आज़म बांग्लादेश हसीना वाजिद मुस्ताफ़ी हो गई और आज सुबह खबर आई जब ये भी बताया गया कि मजबूरन इस्तीफ़ा देने के बाद हसीना वाजिद भारत के लिए रवाना हो गई फ़ौजी तैयारी में सवार होने के बाद। फिर कुछ देर बाद हमने देखा कि बांग्ला आर्मी चीफ़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ऐलान किया बाकायदा तौर पर, और ये भी ऐलान किया कि अबूरी हुकूमत कायम करने जा रही है फ़ौज। और इसी सिलसिले में ये भी पता चल रहा है कि इस वक्त जो सदर साहब हैं बांग्लादेश के, उनसे मुलाकात हो रही है आर्मी चीफ़ की, और उसके बाद सूरत हाल ज़रा वाज़ेह होगी कि आया कोई अबूरी हुकूमत होती है, आया दोबारा इलेक्शंस होते हैं, या क्या सूरत हाल होती है इक़्तिदार की बांग्लादेश के अंदर। बहरहाल इस वक्त मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जिनको डिस्कस किया जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये कि हसीना वाजिद के जाने के बाद क्या बांग्लादेश में सूरत हाल काबू में आएगी, क्या फ़ाल जमहूरियत आगे बढ़ेगी, या फिर मज़ीद केओस और मज़ीद इबहम पैदा होगा। इसी के ऊपर हमने खुसूसी तौर पर मेहमानों को दावत दी है। आपका तारुफ़ करवा देते हैं जी। हमें ज्वाइन कर रहे हैं उज़ैर यूनुस साहब, रीजनल एनालिस्ट हैं आप। हमें ज्वाइन कर रहे हैं प्रोफेसर आदिल नजम साहब, एनालिस्ट हैं आप, और ख़ित्ते के मामलात, इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर बड़ा उबूर रखते हैं आप दोनों। और बांग्लादेश से खुसूसी तौर पर इस वक्त क्या सिचुएशन है और पूरी की पूरी मामला हुआ क्या, इसको जानने के लिए, समझने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं सहाफ़ी वलीउर रहमान। वली, आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद यू, एंड आई अंडरस्टैंड देयर इज़ अ लैंग्वेज बैरियर, so just to make our local audience understand better, I'll help translate whatever you say in Urdu. So Wali, first of all, tell us, we understand that after the January elections there was a controversial government that Hasina formed, but what actually happened, what led to her forced resignation today? Yeah, in fact, it all started with the quota reform. In fact, the quotas in the government jobs. So, on 4th of June, the High Court abolished a system that under that, in fact, the quota was. There was no quota, but in fact the High Court restored the quota system, and then the students started, protesting. So from July 1st, they started, protesting in the Dhaka University campus, because these are basically fast-track job, and 56% of the government job would go to various disadvantaged group. One of them is the freedom fighters' children, or their grandchildren. So when they started protest, in fact, on 14th of July, the Prime Minister held a press conference in Dhaka, and this issue came up. A journalist asked whether she supported the protest by the students. Then she said that she made some comment, in fact, that made the students angry, and from that night, the students took to the street. And they, in fact, they became very angry. The next day, in fact, the ruling party's students' wing, they in fact attacked the general students, and then things went out of control. And that was how it all started. And what do you think pushed Hasina to resign today? What was that pinnacle that pushed her over? Okay, so today, in fact, the students were supposed to march towards her residence. It's called Gana Bhavan. So that was the scheduled program of the students, and but we heard, there were rumors that Sheikh Hasina has already left. So, but at first time we heard that the army chief will be
addressing the nation at 2 o'clock. 2 p.m. Bangladesh time. Then it delayed, and finally he spoke to the nation at 4 o'clock in the afternoon. And there, the Army Chief General Waqar-uz-Zaman announced that Sheikh Hasina has resigned, and perfect. And then we also okay. So Wali, quickly help us understand what's next. Does the army take over indefinitely, or there are talks of an interim government? How does that work out? It is not still clear whether the army took over or not, because there is no formal announcement of that. But what the army chief said, that he will be going to the Bongo Bhavan, that is the presidential palace, and he will be meeting with the president. So the meeting is now taking place. Oh, okay, just yeah, so they will be discussing about how to form an interim government, and they will run everything. So we still don't know whether that will be led by the army chief himself or that will be a civilian government. So we still don't know. But there will be some form of interim government that will run the country. And what is the opposition stance in all of this? We understand they were in a lot of pressure as well. A lot of them are incarcerated as well. The opposition so far, in fact, asked the general people to to stay calm so that they don't go for any revenge or anything like that. But we still don't know whether the opposition is going to accept this interim government or not. So we'll be, in fact, we'll wait to see that. Okay. And Wali, what are your expectations? Do you think Hasina's resignation will help calm things down? Will that not be the case? I think it will take time, because that the people are so angry that that today they went to Gana Bhavan, the official residence of Sheikh Hasina, and they ransacked everything. It was like Sri Lanka. When Rajapaksa left the country, then what happened in Sri Lanka, we all know that. So same thing happened in Bangladesh. So people, in fact, stormed the parliament building, people stormed the prime minister's office, and they set fire to several building linked to the Awami League party. So people are so angry. We still don't know what happened to the ministers. We have no information about that so far. So it is not that the situation will calm down very quickly, but it will be the responsibility of the military and the administration to calm everything down. Okay, well, you stay with us. There's a lot of more questions we have for you, and of course, we want to know how the situation is right now as well. But let me include Professor Adil Saab and Uzair Yunus as well. Adil Saab, आप कहिएगा, जैसे अभी वली भी बता रहे थे कि उनके ख्याल में हसीना वाजिद का जाना, उनका इस्तीफ़ा चीज़ों को काम डाउन नहीं करेगा, या उनसे हालात की बेहतरी अभी तक एक्सपेक्ट नहीं की जा रही. आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? ये जो इस्तीफ़ा आया है, जो मुजाहिरे हुए हैं, एहतजाज हुए हैं, इससे क्या पैगाम लेना चाहिए, क्या मानी रखता है ख़ास तौर पर खित्ते के लिए? दो चीज़ें, बहुत शुक्रिया लीना, बहुत शुक्रिया. पहली चीज़ तो ये कि इस वक्त जो सवाल है बांग्लादेश के सामने, वो इस तरफ कि क्या चीज़ें बेहतर होंगी. सबसे बड़ा सवाल जो उनकी मिलिट्री भी है वक़ार-उज़्ज़मान साहब ने, ये है कि चीज़ों को बदतर होने से बचाया जा सकता है. एंड इस वक्त दैट इज़ अ लाइव क्वेश्चन, क्योंकि एक तरह से एक ट्रायम्फलिज्म भी है उन यंग लोगों में जिन्होंने एक बहुत लॉन्ग लास्टिंग और मजबूत लीडर को ओवरथ्रो किया. एक तरह से वो गुस्सा भी हमें अभी तक नज़र आ रहा है, हमें एक अनसर्टेनिटी भी नज़र आ रही है. तो पहला जो हदफ है वो ये है कि चीज़ें बदतर ना हो, और उसके बाद जो काम है उसके दो चार पहलू हो सकते हैं. एक काम का मतलब तो ये है कि जो वायलेंस है कि कल के दिन 100 यंग पीपल डाइड. खबर सिर्फ नहीं है कि हसीना वाजिद जो है उन्होंने रिजाइन कर दिया, खबर ये है कि एक दिन में 100 यंग लोग जो हैं उनको दे लॉस्ट देयर लाइफ. पिछले हफ्ते में 300 यंग पीपल लॉस्ट देयर लाइफ. एक तरह से नौजवानों की तरफ से ये
आप रेवोल्यूशन कह लें या चेंज आई है, लेकिन उनके खिलाफ भी नौजवान थे। हसीना वाजिद की हुकूमत के जो फेस थे वो उनके साहबजादे थे। हु वाज लीडिंग उनका जो यूथ विंग है, जो बांग्लादेश पॉलिटिक्स में एक बड़े अहम किरदार करता था। तो इन सारी चीज़ों का मतलब ये है कि ये सोचना कि बस क्योंकि हसीना वाजिद चली गई हैं, हसीना शेख चली, सो अब सब कुछ भला चंगा हो जाएगा, आई डू नॉट थिंक सो। उसकी एक और पहलू जो है वो ये है कि सियासी काम कब आएगा। सियासी काम का मसला ये है कि क्या पूरी फौज इस कार्रवाई के साथ है। लगता ये है कि नहीं है, क्योंकि पिछले 16 साल में हसीना वाजिद ने फौज के अंदर अपनी जो सपोर्ट थी उसको बहुत मुस्तहकम कर दिया था, और एक तरह से बहुत से लोग समझे जाते थे कि उनके अपॉइंटीज हैं। तो एक सवाल तो वो है, और दूसरा जो है वो ये है, जैसे आपके गेस्ट ने भी कहा बांग्लादेश से, कि सूरत हाल इंटरिम गवर्नमेंट की होगी क्या, क्योंकि देयर इज नो सेट पैटर्न कि वो क्या होगा। क्या वो एक इंटरिम गवर्नमेंट होगी, क्या वो एक फौजी हुकूमत होगी, क्या उसका काम जो है, क्या उसका हदफ ये होगा कि हमने इलेक्शन कराने हैं जो भी होता है, या उसका हदफ ये होगा कि हमने पहले काम लानी है और जब आएगी तो फिर इलेक्शन करेंगे। तो मेरे ख्याल में सियासी तौर पे सबसे बड़ा सवाल देखने वाला ये होगा कि अगले 1-8 घंटे में जो स्टेटमेंट आएगी, उस स्टेटमेंट आपको बताएगी कि इलेक्शन कब होंगे, या आपको बताएगी कि हमारा क्या प्लान है काम लाने का। अगर दूसरा रास्ता होता है तो दैट मीन्स कि इट मे बी अ लॉन्गर ड्रॉन प्रोसेस। उज़ैर, आप कहिएगा, एक तरफ ये कहा तो जा रहा है, या एक नज़रिया इसको देखने का ये हो सकता है कि एक रेवोल्यूशन आई, अवाम की ये राय थी और उनकी मर्ज़ी से जो इक़्तिदार की तब्दीली है या इंतकाल है वो हुआ, लेकिन क्या इससे मज़ीद बेहतरी आ सकेगी या ये केओस की तरफ जाएगा? अभी तो बहुत जल्द है कहना कि किस तरफ जाएगा, लेकिन लाइव आने से पहले मेरी कुछ ढाका में दोस्तों से भी बात हो रही थी, तो वहाँ पे पुलिस स्टेशंस को आग लगाई जा रही है इस वक्त, बिजनेसेस को प्रॉपर्टी डैमेज की जा रही है, राइटिंग हो रही है। तो इस वक्त तो इंस्टेबिलिटी या इंतशार का माहौल एक तरह से हम कह सकते हैं कि ढाका में एटलीस्ट है। और जैसे डॉक्टर नजम ने भी कहा कि 300 के करीब लोग, कल सिर्फ 100 के करीब लोग मारे गए, तो एक उसकी अकाउंटेबिलिटी कैसे होगी, इसकी वजह से क्या होगा वो भी देखना होगा। और देखें, अगर हम दुनिया भर में देखें, मिस्र में जो है अरब स्प्रिंग रेवोल्यूशन हुई, टूनीशिया में हुई और बाकी ममालिक में हुई, तो शुरू में तो एक खुशी की लहर दौड़ती है, ढाका में भी लोग मिठाइयाँ बांट रहे हैं, लेकिन अब उसके बाद निज़ाम किस तरह चलेगा और क्या लोग होंगे जो इस निज़ाम को चलाएंगे, इस पे जो है वो देखना पड़ेगा। बांग्लादेश की तारीख में जो है वो मार्शल लॉ का भी टाइम रहा है, इंटरिम न्यूट्रल कोट अनकोट जुडिशरी से भी हुकूमतें चलाई गई हैं, तो इन सारी चीज़ों पे देखना होगा। लेकिन अल्टीमेटली जो पॉजिटिव जो चीज़ है वो ये है कि नौजवान बांग्लादेश के बाहर निकले और एक ऐसी रेजीम या एक ऐसी हुकूमत जो कि अनपॉपुलर थी, इलेक्शंस रिग करवा के जीती थी, उसको हटाया उन्होंने, और उसको उन्होंने सिर्फ सड़कों पे आके नहीं बल्कि सोशल मीडिया के बहुत अच्छे इस्तेमाल से प्रेशर में डाला। तो ये खुशाइन बात है इस तरह से कि एक तरह से ऑटोक्रेटिक रूल, वन पार्टी रूल जो है वो इतना मजबूत नहीं होता जितना लोग काफ़ी दफ़ा उसे समझते हैं। अच्छा आदिल साहब, आप कहिएगा, शेख हसीना की जो भारत के साथ कुर्बत है किसी के साथ ढकी छुपी नहीं, और भारत का जो बांग्लादेश के थ्रू असर और रसूख खित्ते में, क्या समझते हैं हसीना वाजिद के जाने के बाद उसमें कुछ कमी आएगी और बदलाव किस हद तक हो सकता है या क्या हो सकता है? जी, इसका इन्हिसार सबसे पहले इस बात पे होगा कि बांग्लादेश में जो हुकूमत बनती है वो कौन बनाता है, और वो अशखास कौन हैं और उनका क्या एटीट्यूड है भारत की तरफ। अगर वो सियासी हुकूमत बनती है, चाहे वो इंटरिम हो, उसमें सियासी पार्टीज होती हैं, तो फॉर एग्जांपल जो बांग्लादेश की जो जमात इस्लामी है, अगर वो उसका हिस्सा बनती है तो उसकी तारीख ऐसी नहीं है जैसी भारत से अभी ऑलरेडी हमें आवाज़ें ये आ रही हैं कि ज़रूरी है हमारे लिए कि हम बांग्लादेश में कोई ऐसी हुकूमत देखें जो भारत के साथ उसकी एक कुर्बत हो। भारत की कुर्बत जो है वो खुद बांग्लादेश की सियासत में एक मसला बन गई थी हसीना वाजिद के लिए, एंड दैट विल रिमेन एन इशू। भारत की तरफ से आप यकीनन कोशिश देखेंगे कि वो एक प्रो इंडिया हुकूमत आए और एक प्रो इंडिया पॉलिसी जारी रहे, और एक हद तक रहेगी,
इसलिए कि वो बांग्लादेश की एक जोग्राफियाई ज़रूरत भी है। लेकिन जिस हद तक हमने हसीना शेख के साथ देखी, आई डू नॉट थिंक दैट विल रिमेन एट लीस्ट इन द शॉर्ट टर्म। उज़ैर, आप इत्तेफाक करते हैं? जी, मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ और इसकी फिर एक एक्सटेंशन मैं बिल्ड करता हूँ डॉक्टर नजम की बात पे। वो ये कि जहाँ मैं एटलीस्ट बैठा हूँ अमेरिका वाशिंगटन में, वहाँ भी एक तरह से व्यू पाया जा रहा था कि जो भारत की जियोग्राफिक नेबरहुड है बिलखुसूस ईस्ट की तरफ, यानी कि बांग्लादेश और नेपाल वगैरह, वो भारत अपने हिसाब से इंगेज करे और वहाँ भारत का इन्फ्लुएंस अगर बढ़ता है तो उसमें कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। ये व्यू से कई लोग बिलखुसूस बांग्लादेशी एक्सपर्ट्स वाशिंगटन में इत्तेफाक नहीं करते थे, कहते थे कि इससे इंस्टेबिलिटी पूरे खत्ते में बढ़ सकती है ईस्टर्न साइड पर। और आज जो है, जो एटलीस्ट मेरी इन लोगों से बात हो रही है, तो वो यही कह रहे हैं कि वाशिंगटन की जो ये स्ट्रैटेजी थी कि हम दिल्ली के जो इंटरेस्ट हैं ढाका में बिलखुसूस उन्हें प्रायोरिटी देंगे, वो एक तरह से इस वक्त एटलीस्ट, क्योंकि शेख हसीना छोड़ के अब भारत जा चुकी हैं, तो वो बैकफायर कर गई है। अब अमेरिका अपनी फॉरेन पॉलिसी उस खित्ते में किस तरह एडजस्ट करता है, ये भी देखना होगा। हम भूल जाते हैं कि म्यांमार में भी इस वक्त हालात काफ़ी ख़राब हैं और भारत के ईस्टर्न फ्लैंक में मणिपुर में कई महीनों से जो है वहाँ भी हालात ख़राब हैं। तो ये पूरा जो ईस्टर्न फ्लैंक है बिम्स्टेक का, इस तरह से जो भारत जिसे कहता है, या ईस्टर्न इंडो पैसिफिक का, वहाँ इस वक्त जो है काफ़ी इंस्टेबिलिटी है और आने वाले महीनों में बढ़ सकती है। Okay, hoping and praying that things calm down in Bangladesh very soon. Thank you so much for joining us. वलीउर रहमान हमारे साथ बांग्लादेश से सहाफ़ी मौजूद थे और प्रोफेसर आदिल नजम साहब, उज़ैर यूनुस साहब, दोनों का बहुत शुक्रिया। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं अपने दूसरे इशू के साथ। वेलकम बैक जी। आज DGISP ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और दीगर चीज़ों के साथ उन्होंने 9 मई के मुतल्लिक भी बात की है। उनसे एक सवाल हुआ जिसके जवाब में उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह कहा कि 9 मई वाक़यात पर फ़ौज के वाज़ेह मौक़िफ़ में कोई तब्दीली आई है और नहीं आएगी। 7 मई के ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मौक़िफ़ था अब भी वही है। डिजिटल दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ पहली दिफाई लाइन कानून है। कानून डिजिटल दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ इस तरह काम नहीं कर रहा है जिस तरह से उसे करना चाहिए। बयानिए बनाने वाले ज़मीनी हक़ाइक़ से बाखबर हैं, लेकिन जानबूझकर ऐसा करते हैं और फ़ौज और अवाम में दरार डालना चाहते हैं। गुज़श्ता चंद रोज़ से बानी PTI फ़ौज से बात करने की ख्वाहिश का इजहार कर रहे थे, ये भी जमा खातिर रखिएगा। अब इस पर सवाल ये पैदा होता है कि एक बार फिर ये जो दोहराया गया है कि 9 मई से मुतल्लिक फ़ौज के मौक़िफ़ में तब्दीली नहीं आई है, लेकिन PTI मुसर है कि बात करेगी तो फ़ौज से, किसी सियासी क़यादत से बात नहीं करेगी। तो क्या वक्त आ गया है कि फ़ौज से सिर्फ मुज़ाकरात के मौक़िफ़ पर तहरीक इंसाफ या बानी तहरीक इंसाफ नज़र-ए-सानी करें अपने मौक़िफ़ पर? हमें इसके लिए ज्वाइन करें महमल सरफराज साहब, उमर चीमा साहब और फ़खर दरानी साहब भी हमारे साथ मौजूद है। महमल, क्या राय है आपकी? देखिए लीना, मेरे या आपके कहने से तो कोई नज़रसानी नहीं होगी ना। हम तो कब से इस प्रोग्राम के ऊपर, वैसे भी जब हमें मौका मिलता है, हम यही कहते हैं कि सारी सियासी जमातों को आपस में बैठना चाहिए और मिल बैठकर बात करनी चाहिए। लेकिन खान साहब का जो मौक़िफ़ है वो है कि उन्होंने सिर्फ फ़ौज से ही उन्होंने बात करनी है। हालांकि HXZ साहब जो थे एक अच्छी चॉइस थे कि वो तमाम पोलिटिकल पार्टी से बात करते, लेकिन आपने पहले उनको मैंडेट दिया, फिर उनसे वो मैंडेट वापस भी ले लिया। तो इससे एक चीज़ नज़र आती है कि खान साहब का काफ़ी वाज़े है। असल में लीना, बात ये होती है कि जब सियासी जमातों को ये चीज़ बिल्कुल पता होती है कि अगर कोई फ्रंट खोलने, 2 जगह पे फ्रंट है, यानी अगर इस्टेब्लिशमेंट से है और दूसरी सियासी जमातों से मसाइल है, तो 2 फ्रंट पे नहीं लड़ा जा सकता। वो एक ना एक जगह पे जहाँ बात करनी होती है। और अगर कोई जमात सिविलियन बालादस्ती के लिए या सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस को एड्रेस करने के लिए कुछ करना चाहती है, तो वो फिर अपने अपोनेंट्स के साथ ही बैठती है। वो अपने सियासी अपोनेंट्स के साथ ही बैठेंगे, जितना मर्जी उनका सियासी इख्तलाफ हो, जितना मर्जी उनका आपसी इख्तलाफ हो, लेकिन रास्ता जो निकालना पड़ता है वो थ्रू सियासत ही होता है। यानी कि सियासतदान ही कोई ना कोई रास्ता निकालते हैं। इधर जो है बहुत क्लैरिटी है। वो ये कि खान साहब की आज जो डिमांड है वो एक ही है कि वो सिर्फ फौज से बात करेंगे। और उस बातचीत से वो चाहते क्या है? वो चाहते हैं कि फौज जो है वो पॉलिटिक्स में मजीद इन्वॉल्व हो, क्योंकि फौज ही इस गवर्नमेंट को निकाले उनके लिए, किसी कानूनी तरीके से नहीं, यानी फौज ही इनको निकाले, फिर वो इलेक्शंस कराए जैसे 2018 में कराए थे, जिसके नतीजे में PTI जो वो वापस आ जाए। और फिर जैसे 2018 में PTI के लिए सहूलतकारी की थी उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने, वो चाहते हैं कि ये दोबारा से हो। स्टैंड स्टिल की वजह यह है कि वो दूसरी साइड ये तैयार नहीं है 2018 वाली जो है सहूलतकारी करने के लिए। तो अब सिंपल सी बात है, आप सिविलियन बालादस्ती के लिए तो आप लड़ नहीं रहे, आप वापस पावर में आने के लिए लड़ रहे हैं। और
चाहते हैं कि इस तरह से मामला किस तरह आगे बढ़ेंगे? 1 साल हो चुका, से ज्यादा, तो फिर मामला इसी तरह से क्या आगे चलते रहेंगे? ना वो बज करने को तैयार है ना वो। देखिए अलीना, इसके अंदर बात क्या है? बात यह है कि ये खान साहब की कोई आज से डिमांड तो है नहीं। आपको याद होगा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद भी जनरल बाजवा के साथ जो मीटिंग हुई थी उन्होंने एडमिट भी किया था, और उसके अंदर फिर हमें उस वक्त जो है हमें बताया भी गया था, डीजी ISI ने बल्कि बताया था कि क्या डिमांड अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड की थी। अब इससे आगे बढ़ने का तो वही तरीका है जो आपका सवाल है, और वो सवाल वही है कि जी नजरसानी करें और पॉलिटिकल पार्टी से बात करें, लेकिन खान साहब ने नहीं करनी। हम उनको जो मर्जी मशवरे देते रहे वो करना ही फौज से चाहते हैं, और वो जो उनके पिछले ताल्लुकात थे वो उसी को जो है वो चाहते हैं कि उसी तरह से रिस्टोर हो जाए जिस तरह 2018 में थे। लेकिन उमर चीमा साहब, इमरान खान साहब या फिर उनकी पार्टी के लोग ये कहते हैं ना कि फ़ौज के पास ही सारी ताकत, या फ़ौज ही कुछ लेने देने की पोजीशन में है, बाकी सबके पास तो ऐसी कोई पावर या पोजीशन ही नहीं है, इनके पास तो अपने लिए नेगोशिएट करने की पोजीशन नहीं है। तो फिर क्या ये नाजायज़ है तहरीक इंसाफ का ये करना, या फिर जायज़ है पोजीशन? अलीना देखें, खान साहब हमारी बात नहीं सुनते और खान साहब की बात फौज वाले नहीं सुनते। अब क्या किया जाए? अब मसला ये है कि हमें एक चीज में तो क्लैरिटी होनी चाहिए कि अगर इमरान खान फौज से बात करना चाहते हैं तो उनके जो सपोर्टर्स हैं या इमरान खान हैं वो ये बात तो ना करें कि मैं जमहूरियत के लिए या सिविलियन बालादस्ती के लिए कंटेस्ट कर रहा हूँ, लड़ रहा हूँ। वो उनको ये बताना चाहिए कि मैं पावर स्ट्रगल कर रहा हूँ, और ये है कि उसमें अगर वो फौज को तसव्वुर करते हैं तो फौज के साथ बात करें। फौज को दोबारा से इतना एक सियासी तौर पे इन्वॉल्व करने वाले या उनको इतना इस मामले में रेलिवेंट करने वाले वो इमरान खान हैं, और उसकी वजह से बाकी जमातों को भी फौज की तरफ आना पड़ा है। आजकल जो इनके मामला चल रहे हैं, मुझे इसके बारे में, मैं जब DG ISPR की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनता हूं और साथ इमरान खान के बयान देखता हूं, मुझे लगता है कि ये कहीं नैरेटिव के फ्रंट पर चल रही है बात। और इमरान खान के चूंकि काफ़ी एक जो मिलिट्री वेटरन्स हैं, जो रिटायर्ड फौजी हैं, वो भी उनके काफ़ी जो मुशीर हैं वो भी हैं, और फौज में क्या चल रहा है या उनके बारे में जो राय है वो, यानी फौज के अंदर जो एक पब्लिक ओपिनियन है वो किस तरफ स्विंग कर रही है, इसके हवाले से वो उनको ज्यादा बेहतर गाइड करते हैं कि आपने क्या बात करनी है और किस मौके पर करनी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इमरान खान जितना तवातर के साथ आजकल ये बात कर रहे हैं कि जी मेरा फौज के साथ कोई मसला नहीं है, मेरा कोई अगर किसी फर्द के साथ होगा तो होगा, ये जो हुकूमत वाले हैं, ये जो PDM वाले हैं, ये मेरे और फौज के दरमियान एक फासला पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इसमें 2 मैसेजेस हैं कि इमरान खान को अभी तक ऊपर वाला सिग्नल तो शायद नहीं आया, लेकिन वो फौज के अंदर जो एक अपनी एक पॉपुलैरिटी थी वो उसको रिटेन करना चाह रहे हैं। उनको कोई बताने वाले ये बता रहे हैं कि आपका उधर जो ग्राफ है वो डाउन जा रहा है, कोई रैंक्स एंड फाइल जो है वो ये समझते हैं कि इमरान खान या उनकी पार्टी जो है वो इस मामले में यानी कि कोई उनके मुखालिफ खड़ी है। दूसरी तरफ जो DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है उसमें भी ये चीज और वाज़ेह होती है कि अगर कोई इमरान खान इस तरह का अभाम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो पैदा नहीं होना चाहिए। अगर कोई उनके रैंक्स एंड फाइल में ये अगर मैसेज आ रहा है इमरान खान के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए, तो वो मैसेज नहीं जाना चाहिए कि ये हमारी तरफ से क्लैरिटी रहनी चाहिए कि हम कोई भी काम 9 मई से ज्यादा अहम नहीं करेंगे। अब फौज के लिए 9 मई ज्यादा अहम है। इमरान खान जो है वो 8 फरवरी पे अटके हुए हैं जी कि 8 फरवरी जब तक वो इलेक्शन में उनके मैंडेट को तस्लीम नहीं किया जाता तो मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा। तो यही चीजें इनकी चल रही हैं। अब देखिए ना, 9 मई के बारे में अभी तक हमारे कुछ चीजें तय नहीं हो रही। उधर लंदन में फसादात हुए हैं, यूके में, तो उन्होंने 7-24 घंटे कोर्ट ऑर्डर कर दिए हैं कि ताकि इनको फसादियों का फौरी तौर पे कोई हल तलाश किया जाए, इनको सजाएं दी जाएं, ताकि आगे लोगों के लिए एक कोई सबक बने कि ये ना हो कि जो जब जीचे उठा जिधर जाके अटैक कर दिया। और हालांकि उनकी ऐसी कोई दफाई तनसीबात पर अटैक नहीं हुआ, उधर जो बाकी बिल्डिंग्स पर अटैक हुआ है या ओवरऑल जिनको वो टारगेट कर रहे हैं वो असाइलम सीकर्स हैं या वो जिस जगह पर रह रहे हैं उनको टारगेट कर रहे हैं या मुसलमानों को कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो है इनकी चीजें अभी तक चली नहीं है और हम जिस तातल का शिकार हैं अल्टीमेटली मेरे ख्याल के तमाम इंस्टीट्यूशन जो हैं उनकी अपनी किसी ना किसी वजह से लेजीनेस या उस बारे में कोई जो वो अभाम का शिकार है उसकी वजह से ये तातुल जो है वो चलता रहेगा आगे। अच्छा, बट आप दोनों से मेरा यही सवाल है,
जब हम ये बात करते हैं कि खान साहब के नाजायज़ है उनकी बात करना फ़ौज से या ताकतवर जो हैं उनसे, तो क्या आपको लगता है कि अगर सियासतदानों से बात करें तो इस तक सियासी जमातों के पास इतनी गुंजाइश है कि वो तहरीक इंसाफ के लिए या इमरान खान के लिए कुछ ना कुछ नरमी मांग सकें? महमल, पहले आप आंसर कर दें, उसके बाद फिर मैं उमर के पास जाती हूँ। देखिए अलीना, आपने भी उमर से भी एक से सवाल किया कि क्या ये पॉलिटिकल पार्टी जिस तरह पीटीआई कहती है कि जी इनके तो पास ताकत ही नहीं है, तो ये तो खुद बहुत हेल्पलेस हैं, तो इनसे हमने क्या बात करनी है। बात ये होती है कि देखिए, आप मुझे बताएं कि आपके ख्याल में सियासी जमातों से आप जब उनसे प्राइवेटली भी बात करें, वैसे भी अगर आप उनकी बातें सुने, हाइब्रिड निज़ाम से आपके ख्याल में कोई सियासी जमातें खुश होंगी? यानी कि वो चले उसकी बेनिफिशरी ज़रूर होंगी एक हाइब्रिड निज़ाम की, पहले पीटीआई रही या पीडीएम की जमातें अगर हाइब्रिड निज़ाम की बेनिफिशरी हो सकती हैं, लेकिन क्या वो असल में इस निज़ाम से खुश होंगी कि उनसे जो है वो पावर लेकर एक जो स्पेस सीड कर दी गई है, क्या वो उसको वापस नहीं चाहेंगे? आप ये देखें कि मुशर्रफ की डिक्टेटरशिप के बाद आकर पीपल्स पार्टी और नून ने वो स्पेस वापस रीगेन की, आहिस्ता आहिस्ता की, ग्रेजुअली की, लेकिन की उन्होंने स्टैंड लिए। ऐसा नहीं है कि उन्होंने एक दूसरे की कोई ऑपोजिशन नहीं की या वो कोई उनका कोई गठजोड़ था इस चीज में। उनका बेसिकली था कि हम अपनी स्पेस, सिविलियन स्पेस तो वापस लें, हम अपने तो उसके आगे हम मूव फॉरवर्ड करें। हाँ, हमने इलेक्शन में एक दूसरे के खिलाफ लड़ना है, बाकी चीजें होती हैं वो हम जरूर करेंगे, और हमने सियासी जमात जारी बात है, उनका आपस में तो नहीं कोई मर्जर हो गया था। तो ये जो चीजें जब मैंने जिस तरह पहले कहा ना कि असल में सियासतदान ही हल निकाल सकते हैं। एक रास्ता वही, अगर हाइब्रिड को इवेंचुअली रिवर्स करना है, खत्म करना है, एस्टैब्लिशमेंट से ये वाली ताकत लेनी है और वापस ही पॉलिटिशियंस को देनी है, तो ये जब तक इकट्ठे नहीं बैठेंगे ये नहीं होगा। और जब ये इकट्ठे नहीं बैठेंगे, जैसा मैंने आपको कहा कि खान साहब तो एक्चुअली चाहते हैं, उनको एक सहूलतकारी की ना आदत होगी थी, तो वो चाहते हैं सहूलतकारी ही रहे, और वरना वो एक केओस या न्यूसेंस बने रहेंगे। और वो जिस तरह से जो मामला चल रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से ये बातचीत फौज के साथ ही हो। वो सिविलियन से बात, पॉलिटिकल पार्टी से बात ही नहीं करना चाहते, नजर ही नहीं आ रहा ऐसा कुछ। उमर, क्यों सियासी जमातें जो तक हुकूमत में कंफर्टेबल पोजीशन एंजॉय कर रही हैं, वो इमरान खान को जेल से रिहा करवाना चाहेंगी या चाहेंगी कि तहकीकात करवाएं जो हल्के हैं उनकी? देखें, बात यह है कि ये एक एतमाद की कमी है। अगर तो हल्कों का सिर्फ मसला हो तो उस पर भी मिरहले की कोई बात हो सकती है। मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि अगर एतमाद वाला खसारा ना हो तो उसके अलावा इस चीज पर भी इतफाक हो सकता है कि हम कोई लेट से कि 2025 में दोबारा इलेक्शन करा लेते हैं। ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। बड़ा इशू जो है ना वो एक एतमाद का खसारा है, वो एक दूसरे को गिराने की एक कोशिश है। और ये जो बात आप कर रही थी कि क्या बाकी जमातें इस काम के लिए तैयार होंगी, उनको इसमें फायदा है, और मेरा ख्याल है कि फौज का भी इसमें फायदा है। कैसे फायदा है? फायदा ये है कि ये टेंशन कम हो। देखिए ना, ओवरऑल ये जो अभी टेंशन चल रही है वो सिर्फ इस टाइम पावर में बैठे हुए हैं ना। पावर के अलावा एक फियर भी है। फियर क्या है? एक दूसरे को गिराने का, कि अगर वो प्रिवेल कर जाते हैं तो हमारे साथ क्या होगा। इमरान खान को भी ये है कि हम कितनी देर अपनी जो इस मोमेंटम को इतना मेंटेन रख सकते हैं कि हमारे जो फॉलोअर्स हैं वो किस स्टेज पर जाकर वो एक बड़ा एक कॉन्फ्लिक्ट फटीग फील करना शुरू कर दें। तो ये चैलेंजेस तो हैं दोनों साइड पे ना। ये तो नहीं है कि इमरान खान जो है वो अगले 10 साल जो चीजें कर सकता है। अगर वो उनको कोई जरूरत है, यानी जब उनको लगता है कि दूसरे लोगों की किसी अंदाज में जरूरत है, तो तब भी वो मुज़ाकरात बात करते हैं, कभी फौज की या कभी किसी और। आपने इसका एक जाविया हमें दिखाया है। एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। फ़कत आप कहिएगा, क्या समझते हैं कि बानी पीटीआई को अब अपने कुछ नजर सानी करनी चाहिए इस बयान के ऊपर या इस मौक़िफ़ के ऊपर कि सिर्फ फौज से बात होगी और किसी और से नहीं? बिल्कुल अलीना, देखें ये इमरान खान को बतौर एक सियासतदान उनकी हमेशा से कोशिश ही यही होनी चाहिए थी कि वो पहले सियासतदानों के साथ मिल बैठ के बातचीत करें। अगर कोई मुज़ाकरात का हल निकलता है तो उससे आगे फिर ये फ़ौज के साथ, क्योंकि ये तो एक अंडरस्टूड सी बात है कि ये जो मामला है ये इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान है। 9 मई का जो वाक़या है वो फ़ौज की इंस्टॉलेशंस के ऊपर हमले किए गए थे, तो उसके ऊपर इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये
एंड स्टेज के ऊपर या आखिर के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही बातचीत करनी होगी इमरान खान को। और जो 7 मई की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी DGI SPR की, उन्होंने क्लियर कट ये पहले से ही शर्त रखी हुई है कि इमरान खान पहले पब्लिकली इस हवाले से माफ़ी मांगे, उसके बाद ही फिर देखा जा सकता है। आज भी उन्होंने दोबारा से यही दोहराया है कि 9 मई के वाक़ये के ऊपर कोई इस पर बातचीत नहीं हो सकती। इसलिए मेरा ख्याल है कि ये जो PTI की पहले सियासी तौर पे इनको तमाम सियासी जमातों के साथ मिल बैठ के मुज़ाकरात करने चाहिए, जो सियासी मामलात हैं उनके साथ बैठें, हल करें। उसके बाद जो नेक्स्ट फेज़ हो वो जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत करने के हवाले से हो, चाहे उससे पहले वो माफ़ी मांगें या कोई भी एक दरमियानी रास्ता निकलता है। अदरवाइज़ मेरा ख्याल है कि ये शुरू से ही स्ट्रेटजी इनकी गलत थी कि वो सियासी जमातों के साथ नहीं बैठेंगे, ना हाथ मिलाएंगे, सिर्फ और सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करेंगे, क्योंकि ताकत का जो मंबा है वो इस्टेब्लिशमेंट है। ये इमरान खान को अपनी सोच बदलनी होगी। अदरवाइज लेकिन फ़खर जब आप भी कह रहे हैं कि इवेंचुअली बात इस्टेब्लिशमेंट से ही करनी होगी, क्योंकि मामला 9 मई का शुरू भी वहीं से होता है, इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान या इस्टेब्लिशमेंट और PTI के दरमियान में जो रिफ्ट है, और फिर ख़त्म भी वहीं पर होगा इन दोनों के दरमियान में। तो फिर क्या ये सही नहीं है कि दोनों ही आपस में बात करें और उसके बाद सारी सियासी जमातें दरमियान में मिल जाएं? अलीना, इसमें कोई शक नहीं कि 9 मई एक अहम जो है सबसे बड़ा मसला है, लेकिन उसके साथ साथ जो सियासी मामलात हैं, पार्लियामेंट के हवाले से हो, कानून साजी के हवाले से हो, बाकी दीगर मामलात, देखें ये जो इस टाइम सियासत है वो सिर्फ इमरान खान की सियासत नहीं है। इमरान खान या उनकी पार्टी भी अवामी जो मसाइल हैं या अवामी जितने भी महंगाई हो, बेरोज़गारी हो, गुर्बत हो, पहले उनके मामलात तो वो जो पार्लियामेंट में वो हल करें, सियासतदानों के साथ मिल बैठ के इस हवाले से कोई वो करें। उसके बाद जो इनके अपने ज़ाती मामलात हैं वो बाद में भी तय हो सकते हैं। लेकिन ये हमने देखा है कि जब से 8 फरवरी के बाद इलेक्शंस के बाद ये पार्लियामेंट में आए हैं, इन्होंने एक बार भी कोई संजीदा तरीके से पार्लियामेंट में अवामी जो मसाइल हैं उनके लिए आवाज़ नहीं उठाई, ना कोई इस तरह के एहतजाज की कॉल दी है। पहले आप सियासी मामलात हैं उनको सियासी तौर पर हल करें, अवाम के लिए आवाज़ उठाएं, उसके बाद आपके जो ज़ाती मामलात हैं, ख़ासतौर पर जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ ये जो 9 मई के वो हैं, तो वो मेरा ख्याल है कि आहिस्ता आहिस्ता एक स्पेस बन जाती है। हमने देखा है माजी में भी सियासी जमातों ने इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर तनकीद भी की है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने बातचीत के जरिए स्पेस अपने लिए क्रिएट की है। आप नून लीग का देख लें कि ये कोई सोच नहीं सकता था 2016, 17 या 18 में जिस तरह नवाज शरीफ साहब तकारीर करते रहे हैं, उसके बाद कोई सोच नहीं सकता था कि अगली गवर्नमेंट में या इंटरिम गवर्नमेंट में ये वापस आ जाएंगे। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है आपकी। एक वक्त लगता है थोड़ा सा मामलात को सेटल डाउन होने के लिए, लेकिन आपने मिसालें दी। आप क्या समझते हैं, क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान में थोड़ा सा मामलात को या गुस्से को सेटल डाउन होने के लिए कितना वक्त लग सकता है? अलीना, मेरा ख्याल है कि इसके लिए इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर इमरान खान, क्योंकि एक तरफ से जिनके ऊपर हमला किया गया उनकी तरफ से ये शर्त भी रखी गई है कि ये पब्लिकली माफ़ी मांग लें तो उसके बाद बातचीत का आगाज़ हो सकता है। तो मेरा ख्याल है कि ये सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के ऊपर मुनहसर है कि वो कब अपने जो एक उनका स्टैंड है वो उससे पीछे थोड़ा सा हटते हैं और ये माफ़ी हो या जो भी अपने, क्योंकि इमरान खान का तो ये मौक़िफ़ है कि ये 9 मई का जो ऑपरेशन है वो था ही फॉल्स फ्लैग। इमरान खान का तो ये एक मौक़िफ़ ही कंटिन्यूसली यही रहा है कि 9 मई का जो वाक़यात हैं एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। उनके किसी भी वर्कर ने तोड़फोड़ नहीं की या किसी सेंसिटिव इंस्टॉलेशन के ऊपर अटैक नहीं किया, बल्कि वो तो कहते हैं कि ये एक एजेंसीज के लोग थे, ये प्लांटेड इस तरह का जो 9 मई का वाक़या था। पहले वो अपने इस मौक़िफ़ से पीछे हटे, फिर उसके बाद जो है ये शायद जो माफ़ीनामा है या जो भी बातचीत का वो हल है वो निकाला जा सकता है। मेरा ख्याल है कि इमरान खान को थोड़ा सा स्टेप बैक करना होगा। एक तो सियासत आपने नवाज शरीफ की मिसाल भी वेरी डायरेक्ट, आपने नवाज शरीफ साहब की मिसाल दी। तकरीबन 4 साल लग गए ना उनको, गए बाहर, उसके बाद वापस आए चीज़ें सेटल डाउन करने में। इमरान खान साहब को क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी, कितनी देर लग सकती है? मेरा ख्याल है कि इसमें इतनी ज़्यादा देर नहीं लग सकती अगर वो अपना अगर वो 9 मई के हवाले से कबूल कर लें, क्योंकि ये तो वो कह रहे हैं कि 9 मई को जो कॉल दी गई थी GHQ के सामने एहतजाज, पूरा मन एहतजाज, वो कहते हैं कि खिलाफ आइन नहीं है। इस हद तक तो वो मान रहे हैं, लेकिन आगे जो तोड़ फोड़ के हवाले से है वो उसके हवाले से बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते कि तोड़ फोड़ में उसके जो वर्कर्स थे या उसके लीडर्स थे वो मुलव्वस थे। एक स्टेप इनको और भी यही 9 मई के हवाले से वो लेना होगा। तो इसके बाद मेरा ख्याल है कि ये बातचीत के दरवाजे
दरवाजे जल्दी खुल सकते हैं। इसमें शायद 1 साल तो ऑलरेडी गुजर चुका है, आगे मजीद इसमें कोई ज्यादा देर नहीं लगेगी अगर ये इमरान खान 9 मई के हवाले से कोई हकीकत पसंदाना सोच रखेंगे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। फ़खर दुरानी साहब, उमर चीमा साहब और महमल सरफराज साहब हमारे साथ थी। आज प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।